سوال فوراً آ کر بچوں پر اٹک جاتا ہے کہ بھی فلاں بچے کو معذور پیدا کر دیا اور ایک بچے کو صحیح پیدا کیا. سوال یہ کہ اگر یہ خدا کے وجود کی دلیل ہوتی تو پھر یہ اعتراض تو ہر انسان کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان مر گیا, ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان, اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کیوں آیا؟ السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اس ویڈیو میں ہم مفتی صاحب کی سوال اور جواب کی زبردست گفتگو دیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا, تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں, کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اسلام کے اس سے اچھے اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن آپ لائک اور کمنٹ نہیں کرتے ہو تو میرا دل ڈگمگا جاتا ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں یا مت کروں. تو یار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں, ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. کیسر بھائی کا اور ہمارا تو کچھ تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. مطلب اس پہ ہم دونوں نے ایک چیز پہ متفق ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے ججمنٹ ڈے پہ دونوں ساتھ چلیں گے, اگر ایسا ہو سکا تو. ٹھیک ہے, ہوگا. اب آپ کا اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ اس پہ بھی یہ کہنا, تو پھر آپ بھی میرے ساتھ ہو جاؤ, تو کیسر بھائی بھی ساتھ, آپ بھی ساتھ, تو میری تو چاندی چاندی ہوگی ججمنٹ ڈے پہ. نہیں, چاندی اس وقت ہوگی کہ اگر آپ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا, اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں پھر لوہا ہی لوہا ہوگا بھائی, پھر چاندی نہیں ہوگی. اچھا وہ سوال ہی بتا دیجئے نا, وہ ذکر ہو رہا تھا تو اتفاق سے میں آ گیا. تو آپ کا والا یا مفتی صاحب والا جو آپ بتا رہے تھے وہاں اسٹریم پہ بات ہوئی تھی اور آپ کا کوئی سوال تچنا رہ گیا تھا. میں نے کیسر صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جیسے اب کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے, میں شارٹ میں بتا دوں, کسی کا بچہ ڈسیبل ہوتا ہے, کسی کا بچہ نارمل ہوتا ہے, تو اس میں اگر سب کچھ مطلب اتنا اسموتھلی چل رہا ہے, اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے, تو کسی کا بچہ ڈسیبل, کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایز مطلب ہندوؤں میں یہ ہے کہ اس کے مطلب پوروجنوں کو سین کرا ہے, مطلب کوئی گناہ کرا ہے, تو اس کے بچہ یا خاندان میں ایسا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسلام میں تو ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ تمہارے پوروجوں نے کوئی ذکر مطلب کچھ غلط کرا اور تمہارا بچہ. تو پھر اگر یہ سب نظام الہی ہے تو پھر کسی کا بچہ ڈسیبل ہو, کسی کا بچہ نارمل کیسے ہو؟ جی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ایکسیپشنز کو کبھی بھی سسٹم کی ریپلیسمنٹ نہیں بنا سکتے. اور آج میں تھوڑی سی بات میں زیادہ واضح کر دوں کہ ایک عیسائیت میں ایک تصور دیا گیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اومنی بلیوننٹ ہے, کہ وہ ہر کسی سے پیار کرتا ہے, اومنیشنٹ ہے, اومنیپٹنٹ ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ جگہ موجود ہے, ہر چیز پہ اس کا علم محیط ہے. تو اس میسج سے انہوں نے یہ فردر میسج دیا کہ جو لوگ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہوئے خدا کی سلطنت میں داخل ہو جائیں گے, ان کی زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی. جس کا جو ایتھیزم ہے انہوں نے بڑا زبردست اس پہ اعتراض کیا, اور کئی کیے, اور بڑے ویلڈ اعتراضات کیے کہ بھئی آپ کرسچنز تو ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں معذور پیدا ہوتے ہیں, اب اور دنیا میں کتنے پرابلمز ہیں, تو ایز این انڈکٹیولی ہم ایک بات کر رہے ہیں پرابلم آف ایول جو ہے اس کی. تو ان کو دقت ہوئی اور وہ یہ آرگومنٹ اپنا انہوں نے لوز کیا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے دین کو سمجھے بغیر یہ فرض کر لیا ایتھیسٹس نے کہ ہمارا بھی ایگزیکٹلی وہی موقف ہے, دیر فور ہمیں بھی وہ ایسے ہی ریفیوٹ کر سکتے ہیں. جبکہ مجھے یاد نہیں آپ سے بات ہو رہی تھی یا کسی اور صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں آپ کو وہ سارے کے سارے رویے ملیں گے جس کا تعلق پالنے سے ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا پہلی آیت میں, بلکہ رب کہا کہ پالنے والا. وہ پالنے والا جو سبق دیتا ہے, جو سختی کرتا ہے, جو محبت کرتا ہے, جو سزا دیتا ہے, الٹیمیٹلی فار ا بینیفٹ. تو اگر بچے کہیں پہ معذور پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس لیے مانیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بچے بیمار پیدا نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کے تحت بیمار بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے رنج و الم کے معاملات ہوتے ہیں. ہم کوئی کلیم نہیں کرتے کہ ہم آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ایک ایک چیز کر کے بتائیں گے. ہاں جتنا اللہ نے بتایا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے, کیونکہ ہم ایمان کو ایمان سمجھتے ہیں. اس کو بازار میں جا کے خرید و فروخت کا ہم یہ ٹھونک بجا کے سودا یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا, ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو ہی ہم کریں گے. اور معذور بچہ تو ہمیں معذور لگتا ہے, وہ معذور ہوتا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے. Isn't this amazing کہ ہم جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں ہم سب میں کوئی نہ کوئی عارضہ تو ہوتا ہی ہے.
कोई ना कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जो हर वक्त मुकम्मल तौर पे वो सेहत याब हो और हमेशा सेहत याब रहे। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इक्का दुक्का खड़का खुड़का इधर उधर सबके साथ लगा हुआ होता है। ये एविडेंस इस चीज का नहीं है कि खुदा नहीं है, क्योंकि हम जब खुदा के एविडेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कि ये एपरेटस, ये यूनिवर्स, ये इंसानी प्रिसीजन, इंसानी जान की प्रिसीजन, शायद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मैंने कल जिक्र किया था, क्या किसी इंसान की कैपेसिटी में ये मौजूद है कि ऐसा बन सके? आंसर इज नो। सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये सारे का सारा वजूद रखता है? आंसर इज यस। लॉजिकल डिडक्शन है कि फिर इसको किसी ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी ने बनाया है जो इस सारे इन कवानीन से बालातर है, क्योंकि ये वजूद भी रखता है और हम उसको बना भी नहीं सकते। That is the evidence for God. उसके अंदर कुछ चीजें हैं, बच्चे क्यों बीमार पैदा हुए, ये चीज वैसे क्यों हो गई, वो वैसे क्यों होगी, मेरी जाती राय है। और वो बच्चे बीमार पैदा होना, उसमें एक फिलोसॉफिकल पॉइंट भी है। चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त ले गया आपका मैं, कि हम जब ये कहते हैं कि मेरा नॉलेज वर्सेस हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह जो कि ओमनिशेंट है, कि उसका नॉलेज जो हर चीज पे मुहीत है, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये हो सकता है कि एक माजूर बच्चा, वो माजूर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह ताला पे अपना नॉलेज इंपोज नहीं कर सकता, गिवन द फैक्ट कि मुझे पता है कि उसका नॉलेज मेरे नॉलेज से सुपीरियर है। अगर उसने उस बच्चे को माजूर पैदा किया है तो बिल्कुल ठीक पैदा किया है, मैं अपनी जाती राय को उस पर इंपोज नहीं कर सकता। माई जॉब इज टू एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सेप्ट, एंड आई डू बोथ। ये मेरी आपसे कल बात हुई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चों ही से नहीं है, यानी ये सवाल फौरन आकर बच्चों पर अटक जाता है कि भी फला बच्चे को माजूर पैदा कर दिया और एक बच्चे को सही पैदा किया। सवाल ये कि अगर ये खुदा के वजूद की दलील होती तो फिर ये एतराज तो हर इंसान के ताल्लुक से होना चाहिए था कि एक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान मर गया, एक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान, उसको हार्ट अटैक आ गया, क्यों आया, क्यों बीमार हुआ। तो इन तमाम चीजों की प्रॉब्लम, अगर ये वो प्रॉब्लम है तो फिर ये भी प्रॉब्लम है, फिर किसी इंसान को मरना नहीं चाहिए था। ये अच्छी चीज ऐड करी वैसे आपने मुफ्ती साहब, कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं। हाँ, एक चीज अच्छा, और लूसीफर भाई एक बात मैं कह देता हूँ। कैसर भाई ने काफी तफसील से इस सवाल को आपके सामने रखा था। अगर आप हर स्ट्रीम पर इस सवाल को तकरार के साथ दोहराएंगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कल भी आपने यही उन्होंने मौत के हवाले से कहा था कि हम लोगों कह सकते हैं कि मौत ही क्यों आती है, लोग मरते क्यों हैं। आपने उस वक्त कहा था, बहुत अच्छी चीज ऐड की, आज फिर ये ऐड हो रही है, मुझे नहीं पता ये कितनी ऐड होगी जी। अच्छा, ऐसा होता है ना, कोई चीज बार बार पिंग माइंड में एकदम टच करती है बार बार, कि जब भी उसकी पॉजिटिविटी देखो तो फिर उसको थोड़ा नेगेटिव। आप ऐसा करें कि जो जवाब उधर दिया था उसको बार बार सुन लें, बार बार ऐसा कर लें जी। चले ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट आ जाए, उसके बाद अगला कॉलर लेंगे मिर्जा गालिब जी। सर लास्ट कमेंट मेरा यही है। तो फिर एक चीज और, जो हारिस सुल्तान ने भी इस बात को एग्री करा था जब शेख उस्मान जो हैं उनसे जब उनकी डिबेट हुई थी, जब उन्होंने अल्लाह का एक सिफाती नाम बताया था, इवॉल्व, तो वो उस बंदे ने भी इस चीज को एड्रेस करता। अच्छा, मतलब एक शॉक हो गया कि अच्छा अल्लाह का एक नाम ये भी है, अच्छा मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैं देखूंगा। उन्हें ये बात करी थी शेख उस्मान की, मैंने भी उसमें पूरी उन लोगों की डिबेट देखी है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोगों से बहुत सारी चीजें मिस हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से गलत तो हम भी नहीं हो सकते ना, आप कहीं ना कहीं आप भी सही हो गए। मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि ये हाईली डिबेटेबल है कि द इवॉल्वर जो है वो अल्लाह का सिफाती नाम है। जो अल्लाह का सिफाती नाम जो है वो अरबी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, उसका तर्जुमा हो सकता है। दूसरी बात ये कि क्या एवोल्यूशन, ओवरऑल एवोल्यूशन, यानी किसी चीज का प्रोग्रेस करना, किसी चीज का एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना, एक फीटस का इंसान की शक्ल में बाहर आना, क्या हम उसका इनकार करते हैं? हम तो खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी रहमत से होता है। हम जिस चीज पर डिबेट है वो डार्विनियन एवोल्यूशन है। आप लोग डिबेट है डार्विन, आप मतलब एक छोटी का जो छोटा वो एवोल्यूशन होता है, आप उसको तो मतलब मानते हो। जी, मैं बस एक छोटी सी एक चीज करना चाहता हूँ अर्ज के, अलबारी का जो है ये ट्रांसलेट किया जाता है कि वो इवॉल्वर है। ट्रू, और हमें इवोल्यूशन से मसला भी नहीं है, लेकिन अगर आप अलबारी को अगर इसमें आप इन्वोक करेंगे तो मसला फिर इवोल्यूशनिस्ट के लिए हो जाता है। इसलिए कि इवोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सेल से सब कुछ इवॉल्व हो गया। अगर आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो डार्विन से लेकर आज तक जितने भी हैं, ये सब के सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये सब का सब बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंसी, बगैर किसी रेगुलेशन के होता है। इसके पीछे कोई खालिक नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। ये रैंडम स्टोकैस्टिक प्रोसेस इन्हें कहा जाता है, रैंडमली ये सारा कुछ होता है। तो अगर आप कहते हैं कि अल खालिक ने किया तो वो जो डार्विनियन इवोल्यूशन है तो वहीं पे कोलैप्स हो जाती है कि उसमें तो खालिक आ जाता है। पहली बात ये।
दूसरी बात ये कि हम इवोल्यूशन के मुखालिफ नहीं हैं, ये बात आप जहन में रखें, हम स्पीसिएशन के मुखालिफ हैं। ये इवोल्यूशन का एविडेंस आपको इस दुनिया में मिल जाएगा। हम सभी एक आदम हवा की औलाद है, लेकिन किसी का कद ज्यादा है, किसी इंसान का नहीं। मैं पूरी स्पीशी जो इंसानों के ग्रोह है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपने अपने इलाकों के हिसाब से उनके जिस्मों ने कुछ ना कुछ वो ढले। अफ्रीका में जैसे जो हवा का टेम्परेचर है वो और तरह का है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन चाहिए तो लोगों के नाक वहाँ पे ज़्यादा चपटे हैं। जो पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। पाकिस्तान में आपको तकरीबन हर रंगत का शख्स आपको मिल जाएगा। हमारे साउथ में जैकबाबाद में सिब्बी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारी जिल्द है वो ज़्यादा गहरी है कि सूरज का उस पर असर कम पड़े। लेकिन जो फेयर क्लाइमेट्स हैं, ऊपर अगर आप शुमाली पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर वहाँ पे -24 भी चला जाता है। यूरोप में इतना नहीं होता, इतना वहाँ पे सर्दी होती है। फेयर स्किन, गोरों से भी गोरे लोग वहाँ पे, उस क्लाइमेट के मुताबिक उनकी जिल्द थोड़ी सी और है। लेकिन ऐसे घोड़े आपको मिल जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं पे उनके बाल ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं ऐसा कभी वैसा, अरबी घोड़े की एक पसली ज्यादा कम, लेकिन वो घोड़ा घोड़ा ही रहता है, इंसान इंसान रहता है। इस तरह की इवोल्यूशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों में कैपेसिटी रखी है कि वो सूरत हाल के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर जाता है। मेरे और मुफ्ती साहब जैसे लोग भी तो हैं ना, हम यूरोप अमेरिका में जाते हैं थोड़े गोरे चट्टे होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में जाते हैं थोड़ा सा रंग और हो जाता है। तो इस तरह की इवोल्यूशन को हम कोई बुरा नहीं समझते। लेकिन ये एक और से एक स्पीशी से दूसरे में चले जाना, दैट्स ऑल रबिश। इसका साइंस में कोई एविडेंस नहीं है, तो मजहब को तो आप बीच में लाएं ना। खैर सर, मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, लेकिन मैं आमिर हक भाई से एक बात बोलना चाहूंगा। आमिर हक भाई बोल रहे थे कि आप एक ही सवाल बार बार पूछें, एक ही। सर मैंने इस सवाल का तो जिक्र ही नहीं करा था। इस सवाल का जिक्र तब उठा ना दिल पे सर कुछ क्लियर करना बेटर रहता है, जो बाद में कुछ ना। मैंने तो ये सवाल का जिक्र ही नहीं कर रहा था। इस सवाल का जिक्र तब आया जब कैसर साहब ने खुद मुझे पॉइंट आउट करके पूछा। कैसर साहब ने पूछा, डिनाई भी नहीं करेंगे क्योंकि सामने की बात है। आपने असल में कैसर भाई का नाम लिया था तो वो आए थे। चले ठीक है, बात हो गई ना। अब चले, अब ठीक है, इसको रखें अगले आपसे अगर मेरा इतना आपको इतना ज्यादा एहतराम है, हया है, जिसका मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आपने कल एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर दुनिया में कोई मजहब है तो वो इस्लाम ही है, जो कि ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और अगर आप कभी ईमान लाए तो आप इस्लाम पे ही लाएंगे। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी थी। और मैंने आपसे ये कहा था कि तरीकाकार ये है कि अपने नाम से से शुरू करें। नामों का असर भी हुआ करता है। शैतान का नाम लेकर, लूसीफर का नाम लेके आप घूम रहे हैं तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। नहीं, कैसा साहब भी एक सीन है। दो प्रॉब्लम है इनके नाम में, एक तो लूसी है और एक लूसीफर है, दोनों ही है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं।